हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, एवरीथिंग फाइन. Okay, good, good, good. So today I will see uh, in data handling chapter we'll see about the mean, right? We'll see mean, median, and mode. So we complete today mean, median, mode. I will try to complete this. So first of all, I welcome to all of you in Gupta Sir Math Hub YouTube channel, right? And and I request also whoever come first time on my channel, please subscribe the channel, right? Okay. Today I will see what is the mean, what is the mode, what is the median, right? Mean, median, mode. So mean itself, or another thing that in previous class we have already discussed about the range also. What is the range? The range, as I have discussed in previous session, that it is a difference between maximum number and minimum number. Please try to remember this. So I will start with this range. Suppose you are given some data like 5, 3, 2, 45, 42, 29, or you can say 19, right? This data has been given to you. This data has been given to you. Now question is how to find the range. So as we have discussed earlier, range is the difference. Range is the difference. Difference of what? That is a maximum or minimum difference. Maximum and minimum difference, right? So first of all, we'll try to find what is the maximum number here. Which one is the maximum? 45 is the maximum, right? 45 is the maximum. And which one is minimum? Minimum is 2. Minimum is 2. So we can say that range that, as already we have discussed, range that is a maximum number minus minimum number, right? Maximum is 45, minimum is 2. So range of this table of this data is 43 is the right answer. 43 is the right answer. So 45 minus 2, 43 is the right answer. Okay, clear? क्लियर? तो हम रेंज के बारे में डिस्कस किए थे, आपको बताए थे कि जो सबसे अधिक नंबर है उस डाटा में, उसमें से हम सबसे जो मिनिमम है उसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें रेंज मिलता है, ठीक है? और अब नेक्स्ट हम डील करेंगे, देखेंगे कि मीन क्या होता है. व्हाट इज द मीन? ओके, मीन इटसेल्फ, आपके दिमाग में कुछ आता होगा कि मीन क्या हो सकता है. मीन क्या हो सकता है? क्या हो सकता है मीन? तो हम मीन के लिए एक डाटा लेंगे कि सपोज इफ आई टेक एन एग्जांपल and I have to find out the mean, like, just I'm going to delete this. Okay, now I'll get the mean, right? Question is of mean. How to get the mean? है mean, or you can say arithmetic mean. Arithmetic mean, right? Arithmetic mean, right? You can say arithmetic mean. कैसे निकालेंगे अर्थमेटिक मीन? ठीक है, कुछ डाटा आपको दिए जाते हैं. सपोज आपके पास 5 है, 3 है, 1 है, 9 है,
0 है, राइट, 3 है, 2 है और 5 है। कहना ये है कि इसका मीन क्या होगा, इसका मीन क्या होगा, और यू कैन से अर्थमेटिक मीन क्या होगा। इन शॉर्ट यू कैन राइट AM, दैट इज अर्थमेटिक मीन, that is arithmetic mean. So how do you get the arithmetic mean? कुछ नहीं करना है, it's a very simple to get the arithmetic mean. What is that mean? What is that mean? Mean, suppose आपने इस सारे डाटा को हम प्लस कर दिए, है ना, एक एक करके इसको हम प्लस करेंगे, अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं, यू कैन गेट द मीन। ठीक है, ये हो गया आपका 5 प्लस 3 है, प्लस 1 है, प्लस 9 है, प्लस 0 है, प्लस 3 है, प्लस 2 है, प्लस 5 है। ऐसा नहीं कि ये 0 है तो विल लिव दिस, नो 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 नो, हम 0 है, हम 0 को भी हम ऐड करेंगे एंड विल गेट द मीन। हम 0 को भी ऐड करेंगे और जितने भी डाटा हैं उससे हम डिवाइड करेंगे, और जितने भी डाटा हैं नंबर हम काउंट कर लेंगे, उससे हम डिवाइड करेंगे। वेरी सिंपल, याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये टोटल कितने हैं, हाउ मेनी आर देयर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, देर आर 8, राइट, देर आर 8 इन नंबर, देर आर 8 इन नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल एड दिस, हम सारे को टोटल करेंगे, राइट। कैसे टोटल करेंगे, आप ऐड करना शुरू कीजिए। वेरी सिंपल, आप देखिए यहाँ पे 3 2 5 और 5 10 हो गया, ठीक है, और 9 और 1 यहाँ भी 10 हो गया, तो ये 10 और ये 10 20 हो गया, हो गया कि नहीं 20, और 20 और 5 25 एंड 3 28, सो रिजल्ट इज 28 अपॉन 8, राइट, रिजल्ट इज 28 अपॉन 8। ये आपका मीन हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ये मीन हो गया, मीन। सो आंसर विल बी इन पॉइंट। डेसिमल में अगर हम आंसर निकालना चाहें तो आंसर डेसिमल में क्या हो सकता है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डेसिमल चैप्टर आल्सो। सो इसमें क्या हो सकता है, देखिए आप 8 से डिवाइड कीजिए, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 एंड 4 is left, so we'll put here point and 8 5 ja 40, so 3.5 is the right answer. 3.5 is the right answer. If you talk about the unit, if you talk about the unit, so you can check it, data is given in which unit. So data कौन से यूनिट में दिया हुआ है, डाटा अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है या किसी भी केजी में दिया हुआ है या किसी में भी दिया हुआ है, बोल सकता है कि आप इसका एवरेज वेट निकालें। हो सकता है आपसे पूछे कि एवरेज वेट निकालें, तो एवरेज वेट इन द सेंस दैट इज द मीन दे आर आस्किंग, एंड एवरेज वेट पूछ लिया। इफ अगर किसी क्लास का आपसे एवरेज हाइट पूछ रहा है, इस क्लास का एवरेज हाइट क्या होगा, तो हाइट को हम, आपको पता है कि हाइट को हम मेजर किस में करते हैं, किस में करते हैं, या तो सेंटीमीटर में बताते हैं या तो हम फुट एंड इंच में बताते हैं, राइट है, राइट है। तो जो हाइट है उसको अगर हम सेंटीमीटर में बताते हैं तो सर्टेनली द टोटल हाइट विल बी, सपोज अ क्लास हैज 10 बॉयज, क्लास हैज 10 बॉयज और 10 और 10 बॉयज हैज गॉट डिफरेंट हाइट, सर्टेनली ऑल बॉयज वोंट बी ऑफ द सेम हाइट, सारे लड़के एक ही सेम हाइट के नहीं होंगे, हर लड़के की हाइट अलग अलग होगी, राइट। सबके हाइट को हम प्लस करेंगे और नंबर ऑफ बॉयज से हम डिवाइड कर देंगे, है ना, नंबर ऑफ बॉयज से हम डिवाइड कर देंगे, सो विल गेट द एवरेज हाइट। अभी हम निकाल लेंगे कि एवरेज हाइट, एवरेज हाइट निकालने के बाद वो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी इन सेंटीमीटर, और वट height you have got it in centimeter, foot or inch, so answer will be in the same unit. Okay, so arithmetic mean has got no special unit, there is no special unit for this. Okay, as per the questions their unit is changed, right, as per the question this unit is changed, right. Okay, so now I'm going to delete this. Okay, so this is the 3.5 gentlemen, as you have got. Now I will get the
weekly temperature, that is a arithmetic mean or average temperature. You can be asked कि what is the average temperature? एवरेज टेम्परेचर क्या होगा? एवरेज टेम्परेचर सपोज किसी भी एरिया का, किसी भी स्पेसिफिक एरिया का आपसे पूछा जाए इस वीकली में इसका एवरेज टेम्परेचर क्या है, एवरेज टेम्परेचर क्या है. सपोज आपसे पूछा गया कि मंडे को इसका टेम्परेचर था, जस्ट आई विल मेंटेन वन टेबल, देयर इज नो, दिस इज अ डेज, ओके, एंड दिस इज अ टेम्परेचर, है ना. डेज के बाद हमने टेम्परेचर अरेंज कर ली. डेज के बाद डेज हमने लिखा यहाँ पे मंडे को टेम्परेचर सपोज 32 डिग्री है. मंडे को टेम्परेचर कितना डिग्री है? 32 डिग्री है. ठीक है, मंडे का टेम्परेचर हमने 32 डिग्री ले लिया. इसके बाद आई वांट इन ट्यूसडे में टेम्परेचर इसकी हो गई 30 डिग्री. ट्यूसडे के बाद हमने वेडनेसडे लिया और वेडनेसडे को इसकी टेम्परेचर हो गई 22 डिग्री. ठीक है, दिस टेम्परेचर ऑल इन डिग्री सी, दैट इज सेंटीग्रेड. That is centigrade. So there is unit centigrade. Centigrade is the unit. Centigrade is the unit. If we want to get average temperature, so answer will be in degree C. That is a centigrade. Right? Getting my point? Getting my point? Okay. So answer will be in degree C. Okay. So now Monday, Tuesday, Wednesday. Then we take if it's Thursday. Thursday that is suppose it will be temperature is 25 degree. ठीक है. Now question is sorry, what is the average temperature of these 4 days? 4 दिन के 4 days के average temperature क्या होंगे? तो same I will apply this, we'll write here average temperature, है ना. क्या लिखेंगे? average temperature of these 4 days. So average temperature में certainly wherever question is of average in the sense आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सबको ऐड कर रहे हैं और जितना भी डेज का मांग रहा है, जितने भी टेम्परेचर को आपने ऐड किया हुआ है उसको हम उनसे डिवाइड कर देंगे. सिंपल. चाहे मेरे से एवरेज हाइट मांग ले या आपसे एवरेज हाइट मांग ले, किसी भी क्लास का एवरेज हाइट बता दो तो एवरेज हाइट में वही करना है. राइट. एवरेज हाइट में भी वही, किसी से आपसे पूछा जाए कि एवरेज वेट क्या होगा तो एवरेज वेट में भी हमें वही करना है. ठीक है, तो सब में हम वही करना है, सबका वेट प्लस कर दो, जितने का आपने हाइट निकाल रहे हैं उसमें से फाइंड आउट कर लो और डिवाइड करके आंसर दे दो. दैट इज योर एवरेज वेट और यू कैन से एवरेज हाइट. सो हियर वी आर गेटिंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिस 4 डेज. 4 दिन की एवरेज टेम्परेचर क्या होगी? 4 दिन की एवरेज टेम्परेचर क्या होगी? सो जेंटलमैन, 4 दिन की एवरेज टेम्परेचर क्या होगी? इस चारों को हम प्लस करेंगे. विल राइट हियर 32 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 25 ओवर 4. Why it is 4? Why it is 4? Question arises. Why it is 4? 4 ही क्यों मैं डाला, 5 क्यों नहीं लिखा मैंने? बिकॉज हम एवरेज टेम्परेचर 4 डेज का निकाल रहे हैं. अगर हम एवरेज टेम्परेचर 8 डेज का निकालते हैं तो सर्टनली आई हैव टू राइट द 8. राइट, सर्टनली आई हैव टू राइट द 8. राइट. अगर हम 10 डेज का एवरेज टेम्परेचर निकालते तो हम 10 लिखते. अगर हम 10 बच्चों का, 10 चिल्ड्रंस का अगर एवरेज हाइट निकाल रहे हैं तो हम 10 से डिवाइड करेंगे. तो हम जितने भी लोगों का निकाल रहे हैं हम उसी से डिवाइड करेंगे. मेरा पर्पज़ ये था क्लियर करने का. बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए और किसी भी एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर सकते हैं. बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. ठीक है, ओके. सो एवरेज हाइट, यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर निकाल रहे हैं. अब इस टोटल को ऐड करो आप. देखो 5 to 7 to 9 ऐड करने का तरीका भी देख रहे हैं आप. हम यहीं पे ऐड करेंगे, नो नीड टू ऐड समवेयर एल्स. सो 5 to 7 to 9 I have written 9. So 2 to 4 3 7 3 10. Now 109 upon 4. So result is 109 upon 4. So 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे. क्या करेंगे? 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे. डिवाइड जो करेंगे सो 9 1 जा 9, वी आर लेफ्ट विथ 1 और 9 19 हो गया, है ना. सो 9 2 जा 18, आई एम लेफ्ट विथ 1. सो if I put here point, so this 1 will be 10, है ना. 10 होगा और 9 1 जा 9 हो गया, है ना. फिर भी एक आएगा तो ये आता रहेगा. तो आपका 12.1 डिग्री सी आप लिख सकते हैं कि दिस इज एवरेज टेम्परेचर. अब मैंने डिवाइड कैसे किया? मैंने डिवाइड कैसे, जो छोटा सा आप देखिए, आप ऐसे मैंने इसको पूरा डील कर लिया है. फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको डिवाइड कैसे कर रहा हूँ, सो यू कैन सी इट हियर. सो 9 1 जा 9, है ना. 109 है ना. 9 1 जा
9, 10 में 9 गया 1, this 9 will come here, so 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 8 में गया 1, 1 1 cancel, you are putting here point, so with this point we are getting 0, तो 9 1 जा 9 और 10 में 9 गया 1, फिर वही रिपीटिशन से स्टार्ट हो गया. सो हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे. 12.1, इफ sometimes it is asked कि you have to give the answer up to 2.2 digits after decimal. कहीं कहीं ये लिखा रहता है कि आप मेरे को आंसर दें डेसिमल के 2 डिजिट तक. अगर कहीं लिखा रहता है कि डेसिमल के 2 डिजिट तक आप मेरे को आंसर दें, तो इसी तरह से आपको अगर 1 डिजिट और अगर हमसे पूछा जा रहा है कि डेसिमल के 2 डिजिट तक आप आंसर दें, तो हम इसको जरूर डालेंगे. हम एक बार और आगे बढ़ जाएंगे, इसी पॉइंट से हम 0 ले आएंगे और अगेन 9 1 जा 9, सो अगेन देखिए 1 बच रहा है, तो योर आंसर विल बी 12.11 डिग्री सी. अगर आपसे कह रहा है कि हमको 2 डिजिट तक आंसर चाहिए तो. अदरवाइज इफ देयर आर नथिंग, नो इंस्ट्रक्शन इज गिवन, सो यू कैन गिव एटलीस्ट 1 डिजिट, 1 डेसिमल तक आप जा सकते हैं. राइट, ठीक है, गॉट माय पॉइंट. ओके ओके, तो अभी आप इसको नोट कर लें, देख लें आप. राइट, नोट कर लें. ठीक है, ओके 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 ओके, नाइस नाइस, ठीक है ठीक है. तो इसको हम हटा रहे हैं. राइट, ठीक है, इसको हम डिलीट कर लें. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. एक अनदर एग्जांपल लेते हैं कि मीन कैसे निकालें. है मीन, अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मुझे मीन चाहिए. फर्स्ट 5, समटाइम्स इट इज आस्क्ड कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मीन चाहिए. कैसे निकालेंगे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मीन? ये तो मैंने सिंपल बता दिया कि आपको जितना भी नंबर दिया हुआ है उसको हम प्लस कर लेंगे, टोटल नंबर देखेंगे कितना है, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे, विल गेट द राइट आंसर. ठीक है. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि अभी ये मैंने बोला कि व्हाट इज दैट, कि फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 natural number. First 5 natural number. Find the mean of first 5 natural number or whole number, anything. Natural number और whole number कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना. नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, ठीक है. और फर्स्ट 5 फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5. यहाँ क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है. फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 इवेंट नंबर. फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर. कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन. तो हमने एक एग्जांपल लिया कि भाई फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की मीन क्या हो सकती है, या फर्स्ट 5 होल नंबर की मीन क्या हो सकती है. तो इस चीज़ के लिए मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए दैट आई शुड नो कि what is the natural number and what is the whole number, or what are the odd number, what are the even number. Then only we can get it, right? Then only we can get it. Okay. So first 5 natural number. We'll get the first 5 natural number, right? First 5 natural number. What is the first 5 natural number? So that you know, first 5 natural number, that is a 1, 2, 3, 4, 5. These are the natural number. Getting my point? If you ask about the first 5 whole number will start with 0. Whole number will start with 0, 1, 2, 3 and 4. Whole number starts with 0 and natural number starts with 1. Right? Correct? So now we'll get the first 5 natural number. Okay? So we'll write here mean. Mean equal to, as I have told you, this number will be added 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. So question itself they are telling कि भाई फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर ही चाहिए मेरे को. फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर चाहिए. कितना नेचुरल नंबर चाहिए? 5. अगर आपसे 5 मांग रहा है तो हम डिवाइड भी 5 से करेंगे. अगर आपसे 5 का नेचुरल नंबर का मांग रहा है तो हम डिवाइड भी 5 से करेंगे. अभी अब इसको ऐड कर लीजिए. आप सिंपली इसको ऐड कीजिए. 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15. ठीक है. 4 5 9 3 12 2 14 1 15. सो 15 अपॉन 5 है ना.
कोई डाउट नहीं. 15/5. Certainly 5 3 जा 15. 5 3 जा 15. Answer is 3. So your mean of the first 5 natural number is 3. Is 3. If you want to get the first 5 whole number, तो आप whole number भी ऐड कर सकते हैं. 0 हो गया, 1 2 1 3 3 6 4 10. 6 4 10 और हम 5 से ही डिवाइड करेंगे. 0 को नहीं छोड़ेंगे. 0 को नहीं छोड़ेंगे. अगर 0 छोड़ देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा. राइट. सो इंक्लूड द 0 इन काउंटिंग. इंक्लूड द 0 इन काउंटिंग. बट एडिशन में 0 जो है नहीं आ पाता है, बिकॉज इफ यू आर एडिंग 0 विथ एनी अदर डिजिट द रिजल्ट विल बी द सेम. ओके. सो आप देखिए ऐड करके 2 1 3 3 6 4 10. इफ यू वांट टू गेट द मीन ऑफ दिस होल नंबर, सो व्हाट इज दैट, आप यहीं पे ऐड कर सकते हैं. 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन व्हाट इज दैट 1 2 1 2 3 4 5. 5 से डिवाइड कर दिया मैंने. 4 3 7 2 9 1 10. 10/5. 5 2 जा 10. 2 is your answer. Right. So first 5 natural number is the mean of this is 3, and first 5 whole numbers mean is 2. Huh? There is difference. There is difference, gentlemen. There is difference. Okay. So in this your exercise that I am going through this exercise, and I have seen that mean and all thing is clear. Okay. So sometimes question may be asked in the data. Right? Data. We suppose this is the data. Which one is the highest? So highest is the 5. Which one is the minimum? 1 is the minimum. ठीक है. राइट. किसने सबसे अच्छा किया, परफॉर्मेंस किसका अच्छा हुआ. सपोज किस कोई क्रिकेट टीम में अगर 11 प्लेयर हैं, सबके अलग अलग रन स्कोर हैं, सबके जो इस चैप्टर में बंद कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अलग अलग स्कोर्स हैं उसके. किसी की 50 स्कोर्स है, किसी की 60 स्कोर्स है, किसी की 70 स्कोर्स है, किसी की 20 स्कोर्स है. तो किसने दी बेस्ट किया. बेस्ट परफॉर्मर कौन हुआ. 70. राइट. बेस्ट परफॉर्मर कौन हुआ. 70. और जो अच्छा जिसने नहीं किया उसका 20 है. मिनिमम जो मार्क्स आए, जो रन स्कोर की 20 हो गई, और जो बेस्ट परफॉर्मेंस किया वो 70 हो गया. राइट. गेटिंग माई पॉइंट. ओके. सो विद दिस, if I don't think there is any dot in this mean part. Now we'll go through the median part. What is that median? So mean is clear now. Mean is clear now. Mean is clear now. Okay. So now I'll go through the median part. What is the median? How to get the median? Okay. Now I'll see the median. So this was your mean, right? This was your mean. I will discuss this today's class. Just I will discuss about the mean, mode, and median. This is a very much important. This is very much that your basic concept must be clear behind this. So because up to I think 10 plus 2 classes, that statics chapter is there, statics part is there. So in this statics part, that you must know mean, what is the mean, what is the mode, what is the median, right? What is the median, mode, and mean. Okay. And in higher class you will get some formulas, right? Formula based questions also. But here in your this class, so you will get the question like this only. Okay. So इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके इस क्लास में. तो आपने नोट कर लिया होगा. सो अब हम इसको ट्रीट कर रहे हैं. सो अब हम देखेंगे कि आखिर ये मीडियन क्या होता है. आखिर ये मीडियन क्या होता है. ओके. आई गो थ्रू द मीडियन. ओके. मीडियन. तब तक इन मीन वाइल जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू. चलिए अब हम देखेंगे इसका मीडियन पार्ट. मीडियन अब किसी डिजिट्स किसी डाटा का हम मीडियन कैसे निकालते हैं. हाउ टू गेट द मीडियन. ओके. मीडियन करने का मतलब है, आप ये देख रहे हैं एक मिडिल नंबर, राइट. मिडिल नंबर. Here you have to think about the middle number, right? If I am putting 2-digit number sometimes 25, 32, and other is 24, again 25,
23, 49 and 50, right? So you have to get the median of this. मीडियन कैसे निकालेंगे? हाउ टू गेट द मीडियन? मीडियन आप कैसे निकालेंगे? मीडियन आप कैसे निकालेंगे? मीडियन के लिए क्या है कि सबसे पहले आपको ये सारे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं, डिसेंडिंग नहीं, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है ना, पता होगा आपको कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम जो डिजिट सबसे छोटा होता है उसको हम पहले लिखते हैं, राइट? जो डिजिट सबसे छोटा होता है उसको हम पहले लिखते हैं, जो मिनिमम है, लोवेस्ट, राइट? और उसके बाद हम धीरे 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 आगे बढ़ते जाते हैं, है ना? इसके धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और इसी डाटा में से, अपने मन से नहीं डालते हैं, अपने मन से कोई चेंज नहीं करेंगे हम यहाँ पे। जो भी क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है, वट एवर इट इज गिवन टू यू, दैट यू हैव टू सर्च फ्रॉम देयर ओनली। Need not to put any data from yourself, from your side. No. Don't do such type of mistakes, right? Okay. So इसी में से निकालना है मेरे को खोज के, राइट? क्या निकालेंगे खोज के? सबसे पहले हमने जैसा बताया कि I have to put this complete data in ascending order. Now ascending order I need first, which is the lowest number. नो, लोएस्ट नंबर कौन सा है? यू हैव टू फाइंड दिस नंबर। लोएस्ट यहाँ 25 है, 32 है, 24 है, 25 है, 23 है, 49 है, 50। आई थिंक इट इज 23, राइट? जस्ट यू कैन चेक दिस, इट इज 23 because 23, 24, 25, 32 and 40 and 50. So 23 is the lowest, right? So first of all, after arranging, ascending order, we'll write here in ascending order, okay? Ascending order में क्या लिखेंगे? Ascending order, right? Ascending order में क्या होगा? Ascending order में क्या होगा? Ascending order में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 23। क्या लिखेंगे? 23 के बाद हम क्या लिखेंगे? 23 के बाद we'll write here 24 के बाद क्या आएगा? 24 के बाद आएगा 25। देखिए 25 कितने टाइम्स है? अगर कोई डाटा रिपीटेड हुआ है तो उसको हम उसी डिजिट के साथ लिखेंगे, ओके? उसको हम उसी डिजिट के साथ लिखेंगे। अगर 25 पहले आया हुआ है, आप इस डाटा में देखें कि 25 पहले से उसमें दिया हुआ है, तो इस 25 हम अगेन डिनोट करेंगे, अगेन इसको हम लिखेंगे सेम। सो हियर इज 25, हियर इज 25, सो विल राइट हियर अगेन 25। So 25 I have written, and after that we have to go for another digit. After 25 I am getting here 32, so we'll write here 32. After this 32 we'll write here 49. Correct, very correct. After this 49 we'll write here 50, because no other number except this. So we have arranged in ascending order, right? We have arranged in ascending order. So gentlemen, please do not forget to arrange in ascending order before calculating, before getting the median. If you get the median without arranging in ascending order, just you are picking up the number, it is wrong, right? So first of all, you arrange in ascending order. Now you have to see which one is the middle number, right? Which one is the middle number? So what is the middle number? Now these are in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are 7 in digit. Right? These are 7. So 7, here it is a 3 and here it is a 3. So 3, 3, 6. Middle one is 25. Middle one is this 25. So you are getting the answer 25. So your result will be, if you want to write the median, median is 25. Median is 25. So your answer will be 25. Answer will be 25. Getting my point? Your answer will be 25. Gentlemen, answer is 25. Right? Okay. Now with this you have got the median. Now I will take some other example. Suppose I have to find out a 10 boys classes, a class 8
हाँ, there is a 10 boys and all are of different height. What is the median of that height? What is the median of that height? So how can you get the median of this? Another example we'll take. Another example. Okay. Now suppose heights are in centimeter. Heights are in centimeter. So there is given height. Height it is in a centimeter, right? So suppose 152 centimeter, 131 centimeter, 161 centimeter, 160 centimeter. These are all in centimeter. Remember it, centimeter. Okay. Again 1, 2, 3, 4. Again 162 centimeter. Again we'll write here 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Another number. We'll this time we'll give some that is a 152 centimeter. अब आप ये समझ रहे होंगे, आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ वहाँ तो आपने मिडिल नंबर फाइंड आउट कर लिया, वहाँ आपने अभी जो प्रीवियस हम लोगों ने देखा वहाँ पे आपने एक मिडिल नंबर निकाल लिया, क्योंकि नंबर ऑड नंबर थे, 7 नंबर था, तो वहाँ हमने मिडिल नंबर फाइंड आउट कर लिया और हमने आंसर दे दिया जी दिस इज द मीडियन. दैट वाज इजी आंसर. अभी यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, बिकॉज दिस इज अ इवन नंबर, राइट? ऑड नंबर, इवन नंबर. सो ऑड नंबर दैट इज अ 7. आपने प्रीवियस में देखा, प्रीवियस एग्जाम्पल में, इससे जस्ट अभी एग्जाम्पल पहले जो हम डिस्कस किए कि उसमें 7 थे, राइट? अभी यहाँ पे 6 है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इन सेंटीमीटर. कैसे निकालेंगे अब इसका? ओके, निकालने का इसको हम सबसे पहले विल अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. दैट इज द बेसिक, है ना? हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. तो आप इसको ध्यान से देखें कि सबसे मिनिमम कौन है. कौन है मिनिमम? 131 है. तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो 131 की प्लेसिंग यहाँ आ जाती है, फर्स्ट हो जाती है उसकी प्लेसिंग. 131 के बाद किसकी प्लेसिंग आएगी? 152. आप देख रहे हैं 152 यहाँ भी है, 152 वहाँ भी है. तो अगेन वी आर राइटिंग हियर 152 सेंटीमीटर की प्लेसिंग आ गई. कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर मैंने ऊपर लिखा हुआ है, सो इट इज सेंटीमीटर ओनली. ओके, 152 हो गया, लेकिन 152 तो 2 टाइम्स है, सो अगेन विल राइट हियर 152, राइट? सो 152 and what is the another number? What is that? So another, that is a 160. So we'll write here 160. 160 के बाद हम क्या ला सकते हैं? As it is, that's 161. Now it is 162. So this now we have arranged this number in ascending order. Perfect. Getting my point? Okay. This complete number is now in ascending order. अब ये ascending order में अरेंज हो चुका है. चलिए, अभी ascending order में जब अरेंज हो चुका है ये, तो हम फटाफट इसकी मीडियन निकाल लेते हैं. मीडियन कैसे निकालेंगे? आप निकालो मीडियन कैसे होगा, क्या होगा मीडियन, निकालो, फाइंड आउट करो मीडियन क्या होगा. ओके, चलिए देखिए, इसमें भी हम क्या करेंगे कि मिडिल पार्ट को ढूंढेंगे हम, कि मिडिल वाला नंबर कौन सा है. तो आप देख रहे हैं कि 2 इधर है, 2 इधर है, सो बीच में 2 नंबर जो हो रहे हैं वो बीच में पड़ रहे हैं. दैट इज ए मिडिल पार्ट. ठीक है, हो रहा है ना? इधर 2 हो गए, इधर 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, लेकिन बीच में 2 आ रहा है. अब मीडियन कैसे निकलेगा? क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि मीडियन निकलेगा कैसे? उसमें तो 1 था, बीच में 1 नंबर आ रहा था, हमने मीडियन दे दिया, सिंपली आंसर. तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत, बहुत ईजी है. तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को प्लस करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे. इस दोनों को हम प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे. इस दोनों डिजिट को हम प्लस करके क्या करेंगे, 2 से हम डिवाइड कर देंगे. तो हम इस दोनों डिजिट को हम प्लस कर रहे हैं. विल राइट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन. क्या लिखेंगे? मीडियन. ठीक है, इस दोनों डिजिट को प्लस कर दीजिए आप. 152 प्लस 160 अपॉन 2. दिस इज वेरी आंसर, राइट? 152 प्लस 160 अपॉन 2, राइट? 152 और 160 को हम प्लस करेंगे, क्या आएगा आंसर हमारे पास? तो आप देखें 0 और 2 हो गया, 6 और 5 11 का 1 1 1 2 1 3 312 अपॉन 2. जेंटलमैन, प्लीज सी दिस, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज ऑफ डिफरेंट टाइप. पहले हमने इवन वाला दिया था आपको एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ एक, ये इवन वाला है. पहले मैंने ऑड वाली दी थी आपको, तो ये इवन वाला है. सो ध्यान दें, चैप्टर में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में
ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जो कि इवन नंबर में दिया हुआ रहेगा और ऑड नंबर में दिया हुआ रहेगा। तो अलग अलग आपके आंसर, आप जेंटलमैन, मैं हर चैप्टर वाइज, एवरी चैप्टर वाइज आई एम ट्राइंग टू क्लियर योर बेसिक कंसेप्ट एंड आई विल क्लियर द बेसिक कंसेप्ट। मैंने जैसा कहा है कि हर एक्सरसाइज को, एवरी एक्सरसाइज को, एवरी चैप्टर को, राइट, आपके मैथ्स के एवरी चैप्टर को, एवरी एक्सरसाइज को हम डील करेंगे, राइट। बट इट इज विल बी वेरी डिफिकल्ट टू टेक क्वेश्चंस वन बाय वन। हम क्या कर रहे हैं कि आपके जो पूरे चैप्टर में जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके एक एक टॉपिक मैं पिकअप कर रहा हूँ और सबके बेसिक क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपके पास अगर ये बेसिक क्लियर हो जाते हैं तो दिस इज माई गारंटी दैट यू विल सॉल्व दिस चैप्टर विद इन नो टाइम, within no time. And after all, this is that as I have told you, this math is matter of practice. If you do not practice, this is not going to solve your purpose, right? If you think that I will remember it, I will learn it, I will write it many times, no. First of all, you have to understand the basic. What is the basic idea behind these questions? If you don't have the basic idea, you cannot clear this, right? So basic idea is must. Basic idea is must. Okay, so now this median I have got 312 upon 2. So now we'll divide this, so we'll get the answer. So 1 2 1 are 2 and other part is 5, 2 5 are 10 and 1 is left, 1 to 12, 2 6 are 12. So 156 centimeter, 156 centimeter is the median. 156 centimeter is the median. Very correct. 156 centimeter is the median. Okay, getting my point? Okay, very nice. Thank you. So now with this, median is over now. So आपके पास कोई भी नंबर का किसी भी डिजिट का आ जाए मीडियन निकालने के लिए, आप, मैं ये 100% गारंटी देता हूँ कि आप उसकी मीडियंस निकाल सकते हैं एंड दैट टू विद इन नो टाइम। आप उसकी मीडियंस निकाल सकते हैं, राइट? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। ओके, सो मैं अब इसको डिलीट कर रहा हूँ, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा 156 सेंटीमीटर, ठीक है? ओके, चलिए, मैंने दो एग्जाम्पल देखे आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया कि कैसे हम उसकी, जब कोई ऑड नंबर में हो तो उसका हम कैसे निकालते हैं मीडियन, वो मैंने बता दिया आपको। और दूसरा एग्जाम्पल दिया कि कैसे हम जब कोई नंबर इवन नंबर हो तो उसका हम मीडियन कैसे निकालते हैं, राइट? तो अभी नाउ नेक्स्ट पार्ट इज मोड। अब हम मोड को कैसे निकालेंगे, व्हाट इज दैट? मोड, है ना? मोड को हम कैसे निकालेंगे, तो आइए देखिए, मोड हम निकालने वाले हैं, ठीक है? हमने इससे पहले मीन को देखा, मीडियन को देखा और मोड को देखा। कभी कभी कोई एक, फिर इसके तीनों बेस्ड हम एक क्वेश्चन डील करेंगे जिसमें तीनों आपको निकालना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा और मीन निकालना पड़ेगा और आपको मोड निकालना पड़ेगा, राइट? तीनों समटाइम्स क्वेश्चन इज आस्क्ड कि आप मीन भी निकालें, मीडियन भी निकालें और मोड भी निकालें, राइट? सो नाउ विल सी द मोड. What is that? Mode. Okay. Now, mode, we'll take some another example for the mode. Like suppose 152, 131, 191, 176, 152, 131, 152, right? Okay. This much data is enough? Any other data we should take? Okay. No issue. Another we are taking again that 152. Another also. Right? Right? Okay. Now, first of all, you can find out easily if you arrange this in ascending order. Right? अगर आप इसको ascending order में arrange कर दें तो easily आपको मोड मिल जाएगा, बहुत इजी वे में। आप इसको अरेंज नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहें तो इसको अरेंज कर लें, अगर आप इसको अरेंज नहीं भी कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप एक टेबल फॉर्म कर सकते हैं। चलिए, एक हम टेबल फॉर्म कर लेते हैं
कि आखिर किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड कि कौन कितनी बार एपियर हो रहा है उस डाटा में, जो डाटा मेरे पास दिया हुआ है। कौन कितनी बार एपियर हो रहा है उस डाटा में जो डाटा क्वेश्चंस में दिया हुआ है, इसको हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, अगर डाटा कम दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कितनी बार अपियर हुआ है। लेकिन अगर डाटा ज़्यादा है सो इट वोंट बी इजी टू रिमेंबर। तो उस समय अगर हमको मोड निकालना है तो यू हैव टू अरेंज वन टेबल, राइट। सो हियर इट इज, हम बोथ वे देख लेंगे, इफ यू वांट टू अरेंज द टेबल, इफ यू डोंट वांट टू अरेंज द टेबल। ओके, सो सपोज इन द फर्स्ट केस इफ आई डोंट वांट टू अरेंज द टेबल, राइट। सो फर्स्ट केस दैट आई हैव टू सी 152 देखिए आप कितनी बार आया हुआ, एक यहाँ है एक यहाँ है, सो 1 2 3 4, सो 152 हैज कम 4 टाइम्स। 152 4 टाइम्स आया हुआ है, कितनी बार आया हुआ है 152 4 टाइम्स आया हुआ है, कितनी बार 4 टाइम्स। ओके, एंड 131 कितनी बार आया हुआ है, आप देखेंगे 131 और 131 कितनी बार आया हुआ है, 2 ही बार आया हुआ है, 2 टाइम्स। 131 2 टाइम्स आया हुआ है, 191 कितनी बार आया हुआ है, 191 एक ही बार आया हुआ है ना, और 176 भी एक बार आया हुआ है ना। तो सबसे ज़्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है, वो हमारा मोड कहलाता है, राइट। सबसे ज़्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा 152 की फ्रीक्वेंसी है। यहाँ देखिए 1, यहाँ देखिए आप 2, और यहाँ देखिए आप 3, और यहाँ देखिए 4। तो 152 की फ्रीक्वेंसी इस पूरे डाटा में सबसे ज़्यादा है। 152 की फ्रीक्वेंसी इस पूरे डाटा में सबसे ज़्यादा है। तो 152 की फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो मोड हमारा कौन हो गया, मोड हमारा हो गया 152। मोड कौन हो गया, मोड हो गया हमारा 152। 152 इज द राइट आंसर। जो जितनी बार ज़्यादा अपियर हुआ है आपके डाटा में, दैट इज योर मोड, दैट इज योर मोड। जेंटलमैन रिमेंबर इट, दैट इज योर मोड। ठीक है, तो ये हमारा मोड जो है 152, बिकॉज 152 4 टाइम्स अपियर हुई है, इसलिए हमारे डाटा में मोड 152 हो गया। ठीक है। अब इफ़ यू वांट टू अरेंज इन टेबल, सो दिस इज द विदाउट अरेंजिंग द टेबल। अगर आप चाहें कि इसको हम टेबल में अरेंज करके कैसे निकालें, तो इसको हम थोड़ा सा जो मोड को हटा रहे हैं और एक टेबल को हम अरेंज कर रहे हैं। टेबल को कैसे अरेंज करेंगे, सपोज यहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा कि ये मार्क्स हैं कि ये हाइट है। सपोज ये हाइट है, ये हाइट है, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी, विल राइट हियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो कितनी बार आया हुआ है हाइट अगर हम सबसे पहले मिनिमम हाइट कौन है 131, सो विल टेक हियर 131 कितनी बार आया हुआ है, 2 फ्रीक्वेंसी है इसकी। फ्रीक्वेंसी भी बताया मैंने आपको कौन कितनी बार अपियर हो रहा है। ठीक है, और अभी हम 131 के बाद कौन आ जाएगा 152, सो विल राइट हियर 152। 152 कितनी बार आया 4 टाइम्स 152 आया है ना। 152 के बाद कौन अपियर हो रहा है 176 मैंने लिख दिया यहाँ पे। 176 कितनी बार में आया, 176 सिंगल टाइम है। ठीक है, 176 के बाद कौन आया 191 कितनी बार आया हुआ है, 191 भी एक सिंगल टाइम आया हुआ है। ठीक है, 2 4 6 1 7 1 8 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज अ रीचेक जेंटलमैन, दिस इज अ रीचेक। नाउ आप इस टेबल में चेक करें कि सबसे ज़्यादा कौन अपियर हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जेंटलमैन 152 अपियर हुआ है। 152 इट इज अपियरिंग 4 टाइम्स, सो दिस इज योर मोड, दिस इज योर 152 इज योर मोड, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज योर मोड। तो आप टेबल में भी अरेंज करके आप ऐसे निकाल सकते हैं कि इसका मोड क्या होगा, है ना। टेबल में अरेंज करके आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, क्लियर है। सो जेंटलमैन, अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपका, मैं फिर से कहता हूँ, अगर अच्छा लगा हो और लगा हो कि इफ़ यू आर बेनिफिटेड विद दिस, प्लीज सब्सक्राइब, like and share also, right? Okay, thank you very much. So in the next class today I have clear the mean, median and mode, these all 3 parts. While this is a very much important part, vital part, so I have cleared it. Now in the next we'll see some graph, how to plot the graph, right?
So we'll clear the graph part and we'll clear the probability part. What is the probability? We'll go in detail with the probability because with a lot of children having issue with the probability. So next for the wait for the next class and please subscribe. You will get the notification in the time, right? You will get the notification in the time so that you can attend this. Right? Okay. Thank you very much.